qon bosimiz oshib ketibdi. Dori beraymi? Necha ekan? 140. Ha, organizm o'rgani bo'ldi. Voy, 140 bilan yurasizmi? O'rganib qoldim. Menga qara. Ana, Murod nima deyapti? Qo'ying shuni. Tayini yo'q u bolani. Yaxshi bolaga o'xshadi-yu, gap so'zidan. Erga tegmayman. Xom o'ylabsan. Yoshi o'tib ketib qoladi. Farzandli bo'lishi kerak. Tushunding? Mana, men misol qil. Saltan xola, bu qizni nima qilsa bo'ladi? Barnoni epla olmayapman. O'zini qo'lga olmayapti. Bunaqada o'zini kasal qilib qo'yadi. O'zim gaplashaman. Shunaqa qiling. Sen o'ylab ko'r. Voy jonim, sekin. O'lim haq. O'lgan ketidan hech kim o'lib ketmaydi. Har kimni o'zini rizq nasibasi tugaganda ketadi. Nega menikilar? Nimaga faqat menikilar? Oyim ketdilar tashlab. Laylo ketdi. Nimaga endi opam? Nimaga men hech kimsiz qolishim kerak? Hayot shunaqa ekan. Sabrli bo'l, bolam. Sabrli bo'lgin. Qanaqa qilib sabrli bo'lasiz? Qayerdan u sabr? Ichim yonib ketyapti. O'zimni o'ldirib qo'ygim kelyapti. Yashagim kelmayapti. O'zing tut. Sen sabrlisan. Sen kuchlisan. Nimaga ularning o'rniga men o'lmadim? Iya. Nimaga? Chidolmayapman. Nafas ololmayapman. Shunaqa bo'ladi. Bunaqa kuyma. Xudoni qahri keladi, bolam. Bunaqa kuyinma. Bilasanmi? Mana shu Xudoyim bir narsani sovg'a qilib beradi-yu, yana qaytarib oladi. Unga shak keltirish yaxshi emas. Sizni kimizdir o'lganman. Siz bu azobni bilasizmi? Kechir, bolam, kechir. Bu uyda har bir burchaga opamni eslatyapti. Qil, bolam. Men ketaman. Qayerga? Ketaman. Men opam ovozini eshityapman. Men ketaman. Men qancha o'limlarga chidaganman. Bu hali yosh. Balki baxt davo bo'lar. Ko'z yoshimni ko'rsatmasligim kerak. Barno. Qayoqqa qizim? Ketaman. Qayoqqa ketasan? Bu uyni har bir burchagida opamni ko'ryapman. Men chidolmayman. Bu uy meni bo'g'yapti, Xudo xola. Xola, chitqami? Men qanaqa qilib yashayman? Hali oyim Xudoni oldida chetdilar. Sen Xudoni oldida chet qolasizmi? Barno, ketmagin qizim. Bizga ham og'ir, oson bo'lmayapti. Aydapa, bunga tinchlantiruvchi ukol qilmasak bo'lmaydi. Shunaqa qil qizim. Barno, qizim, yig'lamagin. Endi chiqib ketyapmiz kasalxonadan. Nazli xonim keldilar. Yaxshi. Qidiruvdasan deb eshitdim. Bola endi esingizga tushdimi? Bolam qani deyapman. O, menga qara. Bu bola endi seni bolang emas. शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुराने मोहल्ले के कोने में बाबा करीम की एक छोटी सी मरम्मत की दुकान थी। बाबा करीम पुरानी घड़ियां ठीक करते थे। उनका मानना था कि वक्त इंसान को नहीं बदलता, बल्कि इंसान वक्त को बदलने की ताकत रखता है। एक सर्द शाम एक नौजवान लड़का जिसका नाम अरसलान था, दुकान में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मायूसी थी और हाथ में एक पुरानी टूटे हुए शीशे वाली घड़ी। बाबा, क्या ये ठीक हो सकती है?
अरसलान ने बुझे हुए लहजे में पूछा। ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी है, लेकिन अब ये चलना बंद हो गई है। शायद अब इसका वक्त खत्म हो गया है। बाबा करीम ने अपनी ऐनक दुरुस्त की और घड़ी का मुआयना करने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, घड़ी रुकने का मतलब ये नहीं होता कि वक्त रुक गया है, बस थोड़ी सी तवज्जो और मरम्मत की जरूरत होती है। अरसलान ने ठंडी आह भरी, मेरी जिंदगी भी इस घड़ी की तरह रुक गई है बाबा। इम्तिहान में नाकामी, दोस्तों की बेवफाई और अब घर के हालात। मुझे लगता है मेरी कोशिशों का कोई फायदा नहीं। बाबा करीम खामोशी से अपना काम करते रहे। उन्होंने घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे अलग किए, उन्हें साफ किया और दोबारा जोड़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने घड़ी अरसलान के सामने मेज पर रख दी। अब वो बिल्कुल ठीक चल रही थी और उसकी टक टक खामोश दुकान में गूंज रही थी। बाबा करीम ने अरसलान की आंखों में झांकते हुए कहा, देखो बेटा, इस घड़ी के अंदर सिर्फ एक छोटा सा कचरा फंस गया था जिसने इतनी बड़ी मशीनरी को रोक दिया था। इंसान का दिल भी ऐसा ही है। जब हम मायूसी और मनफी सोचों का कचरा अपने अंदर जमा कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी की रफ्तार रुक जाती है। उन्होंने मजीद कहा, कोशिश करना मत छोड़ो। अगर आज तुम्हारी जिंदगी की घड़ी रुक गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी सोच की मरम्मत करने और एक नए आगाज की जरूरत है। अरसलान को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर की बुझी हुई उम्मीद दोबारा रोशन हो गई हो। उसने घड़ी ली, बाबा करीम का शुक्रिया अदा किया और एक नए अज़्म के साथ दुकान से बाहर निकल गया। उसे समझ आ गया था कि वक्त की सोइयों को दोबारा हरकत में लाना खुद उसके अपने हाथ में है। सबक, जिंदगी में मुश्किलात सिर्फ एक वक्फा होती हैं, इख्तिताम नहीं। अगर हम हिम्मत न हारें तो रुका हुआ वक्त भी दोबारा बेहतर अंदाज में शुरू हो सकता है। कीमती पत्थर। एक दौरफ्तादा गांव में हामिद नामी एक किसान रहता था। हामिद बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था जहां वो दिन रात पसीना बहाता, मगर जमीन से कुछ खास हासिल न होता। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने हामिद को थका हुआ देखकर कहा, बेटा, तुम इस बंजर मट्टी में वक्त क्यों जाया कर रहे हो? मैंने सुना है कि उस पहाड़ के पीछे एक कदीम वादी है जहां जमीन में कीमती हीरे छुपे हुए हैं। अगर तुम वहां जाओ तो तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी। हामिद के दिल में लालच और उम्मीद ने जगह बना ली। उसने अपना वो छोटा सा खेत एक सस्ते दामों बेच दिया और हीरों की तलाश में निकल पड़ा। उसने कई साल पहाड़ों की खाक छानी, जंगलों में भटका और बेपनाह सख्तियां झीलें, लेकिन उसे कहीं कोई हीरा ना मिला। आखिरकार वो बूढ़ा और बीमार होकर खाली हाथ अपने गांव वापस लौट आया। जब वो अपने पुराने खेत के पास से गुजरा तो वो दंग रह गया। वहां अब बंजर जमीन नहीं थी, बल्कि लुक लहलहाते हुए अनाज के खेत और खूबसूरत फलों के बागात थे। इस खेत का नया मालिक वहां खड़ा काम कर रहा था। हामिद ने हैरत से पूछा, भाई, ये मोजज़ा कैसे हुआ? मैंने तो यहां सालों हिल चलाया मगर कुछ ना आगा। नए मालिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हामिद भाई, मोजज़ा मिट्टी में नहीं, तरीके में था। जब मैंने ये जमीन ली तो मैंने सिर्फ ऊपर की मिट्टी नहीं देखी, बल्कि गहराई तक खुदाई की। मुझे नीचे से एक मीठे पानी का चश्मा मिला। मैंने इसी पानी से खेत को सैराब किया और आज ये जमीन सोना अगल रही है। हामिद वहीं बैठ गया और उसे एहसास हुआ कि वो जिस हीरे की तलाश में दर दर भटक रहा था वो दरअसल उसके अपने ही कदमों के नीचे छुपा हुआ था। बस उसे थोड़ी और गहराई और सब्र से काम लेने की जरूरत थी। नतीजा, हम अक्सर कामयाबी को दूर दराज के ख्वाबों में ढूंढते हैं, जबकि कामयाबी हमारे अपने काम को बेहतर तरीके से करने और मुसलसल मेहनत करने में छुपी होती है। अल्लाह ने हर इंसान के कदमों तले कोई न कोई खजाना रखा है, बस उसे पहचानने की देर है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुराने मोहल्ले के कोने में बाबा करीम की एक छोटी सी मुरम्मत की दुकान थी। बाबा करीम पुरानी घड़ियां ठीक करते थे। उनका मानना था कि वक्त इंसान को नहीं बदलता, बल्कि इंसान वक्त को बदलने की ताकत रखता है। एक सर्द शाम एक नौजवान लड़का जिसका नाम अरसलान था दुकान में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मायूसी थी और हाथ में एक पुरानी टूटे हुए शीशे वाली घड़ी। बाबा, क्या ये ठीक हो सकती है? अरसलान ने बुझे हुए लहजे में पूछा। ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी है, लेकिन अब ये चलना बंद हो गई है। शायद अब इसका वक्त खत्म हो गया है। बाबा करीम ने अपनी ऐनक दुरुस्त की और घड़ी का मुआयना करने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, घड़ी रुकने का मतलब ये नहीं होता कि वक्त रुक गया है, बस थोड़ी सी तवज्जो और मरम्मत की जरूरत होती है। अरसलान ने ठंडी आह भरी, मेरी जिंदगी भी इस घड़ी की तरह रुक गई है बाबा। इम्तिहान में नाकामी, दोस्तों की बेवफाई और अब घर के हालात। मुझे लगता है मेरी कोशिशों का कोई फायदा नहीं।
बाबा करीम खामोशी से अपना काम करते रहे। उन्होंने घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे अलग किए, उन्हें साफ किया और दोबारा जोड़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने घड़ी अरसलान के सामने मेज पर रख दी। अब वो बिल्कुल ठीक चल रही थी और उसकी टक टक खामोश दुकान में गूंज रही थी। बाबा करीम ने अरसलान की आंखों में झांकते हुए कहा, देखो बेटा, इस घड़ी के अंदर सिर्फ एक छोटा सा कचरा फंस गया था जिसने इतनी बड़ी मशीनरी को रोक दिया था। इंसान का दिल भी ऐसा ही है। जब हम मायूसी और मनफी सोचों का कचरा अपने अंदर जमा कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी की रफ्तार रुक जाती है। उन्होंने मजीद कहा, कोशिश करना मत छोड़ो। अगर आज तुम्हारी जिंदगी की घड़ी रुक गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी सोच की मरम्मत करने और एक नए आगाज की जरूरत है। अरसलान को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर की बुझी हुई उम्मीद दोबारा रोशन हो गई हो। उसने घड़ी ली, बाबा करीम का शुक्रिया अदा किया और एक नए अज़्म के साथ दुकान से बाहर निकल गया। उसे समझ आ गया था कि वक्त की सुइयों को दोबारा हरकत में लाना खुद उसके अपने हाथ में है। सबक: जिंदगी में मुश्किलात सिर्फ एक वक्फा होती हैं, इख्तिताम नहीं। अगर हम हिम्मत न हारें तो रुका हुआ वक्त भी दोबारा बेहतर अंदाज में शुरू हो सकता है। कीमती पत्थर। एक दौरफ्तादा गांव में हामिद नामी एक किसान रहता था। हामिद बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था जहां वो दिन रात पसीना बहाता, मगर जमीन से कुछ खास हासिल न होता। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने हामिद को थका हुआ देखकर कहा, बेटा, तुम इस बंजर मट्टी में वक्त क्यों जाया कर रहे हो? मैंने सुना है कि उस पहाड़ के पीछे एक कदीम वादी है जहां जमीन में कीमती हीरे छुपे हुए हैं। अगर तुम वहां जाओ तो तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी। हामिद के दिल में लालच और उम्मीद ने जगह बना ली। उसने अपना वो छोटा सा खेत एक सस्ते दामों बेच दिया और हीरों की तलाश में निकल पड़ा। उसने कई साल पहाड़ों की खाक छानी, जंगलों में भटका और बेपनाह सख्तियां झीलें, लेकिन उसे कहीं कोई हीरा ना मिला। आखिरकार वो बूढ़ा और बीमार होकर खाली हाथ अपने गांव वापस लौट आया। जब वो अपने पुराने खेत के पास से गुजरा तो वो दंग रह गया। वहां अब बंजर जमीन नहीं थी, बल्कि लुक लहलहाते हुए अनाज के खेत और खूबसूरत फलों के बागात थे। इस खेत का नया मालिक वहां खड़ा काम कर रहा था। हामिद ने हैरत से पूछा, भाई, ये मोजज़ा कैसे हुआ? मैंने तो यहां सालों हिल चलाया मगर कुछ ना आगा। नए मालिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हामिद भाई, मोजज़ा मिट्टी में नहीं, तरीके में था। जब मैंने ये जमीन ली तो मैंने सिर्फ ऊपर की मिट्टी नहीं देखी, बल्कि गहराई तक खुदाई की। मुझे नीचे से एक मीठे पानी का चश्मा मिला। मैंने इसी पानी से खेत को सैराब किया और आज ये जमीन सोना अगल रही है। हामिद वहीं बैठ गया और उसे एहसास हुआ कि वो जिस हीरे की तलाश में दर दर भटक रहा था वो दरअसल उसके अपने ही कदमों के नीचे छुपा हुआ था। बस उसे थोड़ी और गहराई और सब्र से काम लेने की जरूरत थी। नतीजा: हम अक्सर कामयाबी को दूर दराज के ख्वाबों में ढूंढते हैं, जबकि कामयाबी हमारे अपने काम को बेहतर तरीके से करने और मुसलसल मेहनत करने में छुपी होती है। अल्लाह ने हर इंसान के कदमों तले कोई न कोई खजाना रखा है, बस उसे पहचानने की देर है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुराने मोहल्ले के कोने में बाबा करीम की एक छोटी सी मुरम्मत की दुकान थी। बाबा करीम पुरानी घड़ियां ठीक करते थे। उनका मानना था कि वक्त इंसान को नहीं बदलता, बल्कि इंसान वक्त को बदलने की ताकत रखता है। एक सर्द शाम एक नौजवान लड़का जिसका नाम अरसलान था दुकान में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मायूसी थी और हाथ में एक पुरानी टूटे हुए शीशे वाली घड़ी। बाबा, क्या ये ठीक हो सकती है? अरसलान ने बुझे हुए लहजे में पूछा। ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी है, लेकिन अब ये चलना बंद हो गई है। शायद अब इसका वक्त खत्म हो गया है। बाबा करीम ने अपनी ऐनक दुरुस्त की और घड़ी का मुआयना करने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, घड़ी रुकने का मतलब ये नहीं होता कि वक्त रुक गया है, बस थोड़ी सी तवज्जो और मरम्मत की जरूरत होती है। अरसलान ने ठंडी आह भरी, मेरी जिंदगी भी इस घड़ी की तरह रुक गई है बाबा। इम्तिहान में नाकामी, दोस्तों की बेवफाई और अब घर के हालात। मुझे लगता है मेरी कोशिशों का कोई फायदा नहीं। बाबा करीम खामोशी से अपना काम करते रहे। उन्होंने घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे अलग किए, उन्हें साफ किया और दोबारा जोड़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने घड़ी अरसलान के सामने मेज पर रख दी। अब वो बिल्कुल ठीक चल रही थी और उसकी टक टक खामोश दुकान में गूंज रही थी। बाबा करीम ने अरसलान की आंखों में झांकते हुए कहा, देखो बेटा, इस घड़ी के अंदर सिर्फ एक छोटा सा कचरा फंस गया था जिसने इतनी बड़ी मशीनरी को रोक दिया था। इंसान का दिल भी ऐसा ही है।
जब हम मायूसी और मनफी सोचों का कचरा अपने अंदर जमा कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी की रफ्तार रुक जाती है। उन्होंने मजीद कहा, कोशिश करना मत छोड़ो। अगर आज तुम्हारी जिंदगी की घड़ी रुक गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी सोच की मरम्मत करने और एक नए आगाज की जरूरत है। अरसलान को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर की बुझी हुई उम्मीद दोबारा रोशन हो गई हो। उसने घड़ी ली, बाबा करीम का शुक्रिया अदा किया और एक नए अज़्म के साथ दुकान से बाहर निकल गया। उसे समझ आ गया था कि वक्त की सुइयों को दोबारा हरकत में लाना खुद उसके अपने हाथ में है। सबक: जिंदगी में मुश्किलात सिर्फ एक वक्फा होती हैं, इख्तिताम नहीं। अगर हम हिम्मत न हारें तो रुका हुआ वक्त भी दोबारा बेहतर अंदाज में शुरू हो सकता है। कीमती पत्थर। एक दौरफ्तादा गांव में हामिद नामी एक किसान रहता था। हामिद बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था जहां वो दिन रात पसीना बहाता, मगर जमीन से कुछ खास हासिल न होता। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने हामिद को थका हुआ देखकर कहा, बेटा, तुम इस बंजर मट्टी में वक्त क्यों जाया कर रहे हो? मैंने सुना है कि उस पहाड़ के पीछे एक कदीम वादी है जहां जमीन में कीमती हीरे छुपे हुए हैं। अगर तुम वहां जाओ तो तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी। हामिद के दिल में लालच और उम्मीद ने जगह बना ली। उसने अपना वो छोटा सा खेत एक सस्ते दामों बेच दिया और हीरों की तलाश में निकल पड़ा। उसने कई साल पहाड़ों की खाक छानी, जंगलों में भटका और बेपनाह सख्तियां झीलें, लेकिन उसे कहीं कोई हीरा ना मिला। आखिरकार वो बूढ़ा और बीमार होकर खाली हाथ अपने गांव वापस लौट आया। जब वो अपने पुराने खेत के पास से गुजरा तो वो दंग रह गया। वहां अब बंजर जमीन नहीं थी, बल्कि लुक लहलहाते हुए अनाज के खेत और खूबसूरत फलों के बागात थे। इस खेत का नया मालिक वहां खड़ा काम कर रहा था। हामिद ने हैरत से पूछा, भाई, ये मोजज़ा कैसे हुआ? मैंने तो यहां सालों हिल चलाया मगर कुछ ना आगा। नए मालिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हामिद भाई, मोजज़ा मिट्टी में नहीं, तरीके में था। जब मैंने ये जमीन ली तो मैंने सिर्फ ऊपर की मिट्टी नहीं देखी, बल्कि गहराई तक खुदाई की। मुझे नीचे से एक मीठे पानी का चश्मा मिला। मैंने इसी पानी से खेत को सैराब किया और आज ये जमीन सोना अगल रही है। हामिद वहीं बैठ गया और उसे एहसास हुआ कि वो जिस हीरे की तलाश में दर दर भटक रहा था वो दरअसल उसके अपने ही कदमों के नीचे छुपा हुआ था। बस उसे थोड़ी और गहराई और सब्र से काम लेने की जरूरत थी। नतीजा: हम अक्सर कामयाबी को दूर दराज के ख्वाबों में ढूंढते हैं, जबकि कामयाबी हमारे अपने काम को बेहतर तरीके से करने और मुसलसल मेहनत करने में छुपी होती है। अल्लाह ने हर इंसान के कदमों तले कोई न कोई खजाना रखा है, बस उसे पहचानने की देर है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुराने मोहल्ले के कोने में बाबा करीम की एक छोटी सी मुरम्मत की दुकान थी। बाबा करीम पुरानी घड़ियां ठीक करते थे। उनका मानना था कि वक्त इंसान को नहीं बदलता, बल्कि इंसान वक्त को बदलने की ताकत रखता है। एक सर्द शाम एक नौजवान लड़का जिसका नाम अरसलान था दुकान में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मायूसी थी और हाथ में एक पुरानी टूटे हुए शीशे वाली घड़ी। बाबा, क्या ये ठीक हो सकती है? अरसलान ने बुझे हुए लहजे में पूछा। ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी है, लेकिन अब ये चलना बंद हो गई है। शायद अब इसका वक्त खत्म हो गया है। बाबा करीम ने अपनी ऐनक दुरुस्त की और घड़ी का मुआयना करने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, घड़ी रुकने का मतलब ये नहीं होता कि वक्त रुक गया है, बस थोड़ी सी तवज्जो और मरम्मत की जरूरत होती है। अरसलान ने ठंडी आह भरी, मेरी जिंदगी भी इस घड़ी की तरह रुक गई है बाबा। इम्तिहान में नाकामी, दोस्तों की बेवफाई और अब घर के हालात। मुझे लगता है मेरी कोशिशों का कोई फायदा नहीं। बाबा करीम खामोशी से अपना काम करते रहे। उन्होंने घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे अलग किए, उन्हें साफ किया और दोबारा जोड़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने घड़ी अरसलान के सामने मेज पर रख दी। अब वो बिल्कुल ठीक चल रही थी और उसकी टक टक खामोश दुकान में गूंज रही थी। बाबा करीम ने अरसलान की आंखों में झांकते हुए कहा, देखो बेटा, इस घड़ी के अंदर सिर्फ एक छोटा सा कचरा फंस गया था जिसने इतनी बड़ी मशीनरी को रोक दिया था। इंसान का दिल भी ऐसा ही है। जब हम मायूसी और मनफी सोचों का कचरा अपने अंदर जमा कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी की रफ्तार रुक जाती है। उन्होंने मजीद कहा, कोशिश करना मत छोड़ो। अगर आज तुम्हारी जिंदगी की घड़ी रुक गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी सोच की मरम्मत करने और एक नए आगाज की जरूरत है। अरसलान को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर की बुझी हुई उम्मीद दोबारा रोशन हो गई हो। उसने घड़ी ली, बाबा करीम का शुक्रिया अदा किया और एक नए अज़्म के साथ दुकान से बाहर निकल गया। उसे समझ आ गया था कि वक्त की सुइयों को दोबारा हरकत में लाना खुद उसके अपने हाथ में है। सबक: जिंदगी में मुश्किलात सिर्फ एक वक्फा होती हैं, इख्तिताम नहीं।
अगर हम हिम्मत न हारें तो रुका हुआ वक्त भी दोबारा बेहतर अंदाज में शुरू हो सकता है। कीमती पत्थर। एक दौर अफ्तादा गांव में हामिद नामी एक किसान रहता था। हामिद बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था, जहां वो दिन रात पसीना बहाता, मगर जमीन से कुछ खास हासिल न होता। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने हामिद को थका हुआ देखकर कहा, बेटा, तुम इस बंजर मट्टी में वक्त क्यों जाया कर रहे हो? मैंने सुना है कि उस पहाड़ के पीछे एक कदीम वादी है, जहां जमीन में कीमती हीरे छुपे हुए हैं। अगर तुम वहां जाओ तो तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी। हामिद के दिल में लालच और उम्मीद ने जगह बना ली। उसने अपना वो छोटा सा खेत एक सस्ते दामों बेच दिया और हीरों की तलाश में निकल पड़ा। उसने कई साल पहाड़ों की खाक छानी, जंगलों में भटका और बेपनाह सख्तियां झीलें, लेकिन उसे कहीं कोई हीरा ना मिला। आखिरकार वो बूढ़ा और बीमार होकर खाली हाथ अपने गांव वापस लौट आया। जब वो अपने पुराने खेत के पास से गुजरा तो वो दंग रह गया। वहां अब बंजर जमीन नहीं थी, बल्कि लुक लहलहाते हुए अनाज के खेत और खूबसूरत फलों के बागात थे। इस खेत का नया मालिक वहां खड़ा काम कर रहा था। हामिद ने हैरत से पूछा, भाई, ये मोजज़ा कैसे हुआ? मैंने तो यहां सालों हिल चलाया, मगर कुछ ना आगा। नए मालिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हामिद भाई, मोजज़ा मिट्टी में नहीं, तरीके में था। जब मैंने ये जमीन ली तो मैंने सिर्फ ऊपर की मिट्टी नहीं देखी, बल्कि गहराई तक खुदाई की। मुझे नीचे से एक मीठे पानी का चश्मा मिला। मैंने इसी पानी से खेत को सैराब किया और आज ये जमीन सोना अगल रही है। हामिद वहीं बैठ गया और उसे एहसास हुआ कि वो जिस हीरे की तलाश में दर दर भटक रहा था, वो दरअसल उसके अपने ही कदमों के नीचे छुपा हुआ था। बस उसे थोड़ी और गहराई और सब्र से काम लेने की जरूरत थी। नतीजा, हम अक्सर कामयाबी को दूर दराज के ख्वाबों में ढूंढते हैं, जबकि कामयाबी हमारे अपने काम को बेहतर तरीके से करने और मुसलसल मेहनत करने में छुपी होती है। अल्लाह ने हर इंसान के कदमों तले कोई न कोई खजाना रखा है, बस उसे पहचानने की देर है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुराने मोहल्ले के कोने में बाबा करीम की एक छोटी सी मुरम्मत की दुकान थी। बाबा करीम पुरानी घड़ियां ठीक करते थे। उनका मानना था कि वक्त इंसान को नहीं बदलता, बल्कि इंसान वक्त को बदलने की ताकत रखता है। एक सर्द शाम एक नौजवान लड़का जिसका नाम अरसलान था, दुकान में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मायूसी थी और हाथ में एक पुरानी टूटे हुए शीशे वाली घड़ी। बाबा, क्या ये ठीक हो सकती है? अरसलान ने बुझे हुए लहजे में पूछा। ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी है, लेकिन अब ये चलना बंद हो गई है। शायद अब इसका वक्त खत्म हो गया है। बाबा करीम ने अपनी ऐनक दुरुस्त की और घड़ी का मुआयना करने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, घड़ी रुकने का मतलब ये नहीं होता कि वक्त रुक गया है, बस थोड़ी सी तवज्जो और मरम्मत की जरूरत होती है। अरसलान ने ठंडी आह भरी, मेरी जिंदगी भी इस घड़ी की तरह रुक गई है बाबा। इम्तिहान में नाकामी, दोस्तों की बेवफाई और अब घर के हालात। मुझे लगता है मेरी कोशिशों का कोई फायदा नहीं। बाबा करीम खामोशी से अपना काम करते रहे। उन्होंने घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे अलग किए, उन्हें साफ किया और दोबारा जोड़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने घड़ी अरसलान के सामने मेज पर रख दी। अब वो बिल्कुल ठीक चल रही थी और उसकी टक टक खामोश दुकान में गूंज रही थी। बाबा करीम ने अरसलान की आंखों में झांकते हुए कहा, देखो बेटा, इस घड़ी के अंदर सिर्फ एक छोटा सा कचरा फंस गया था, जिसने इतनी बड़ी मशीनरी को रोक दिया था। इंसान का दिल भी ऐसा ही है। जब हम मायूसी और मनफी सोचों का कचरा अपने अंदर जमा कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी की रफ्तार रुक जाती है। उन्होंने मजीद कहा, कोशिश करना मत छोड़ो। अगर आज तुम्हारी जिंदगी की घड़ी रुक गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी सोच की मरम्मत करने और एक नए आगाज की जरूरत है। अरसलान को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर की बुझी हुई उम्मीद दोबारा रोशन हो गई हो। उसने घड़ी ली, बाबा करीम का शुक्रिया अदा किया और एक नए अज़्म के साथ दुकान से बाहर निकल गया। उसे समझ आ गया था कि वक्त की सोइयों को दोबारा हरकत में लाना खुद उसके अपने हाथ में है। सबक, जिंदगी में मुश्किलात सिर्फ एक वक्फा होती हैं, इख्तिताम नहीं। अगर हम हिम्मत न हारें तो रुका हुआ वक्त भी दोबारा बेहतर अंदाज में शुरू हो सकता है। कीमती पत्थर। एक दौर अफ्तादा गांव में हामिद नामी एक किसान रहता था। हामिद बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था, जहां वो दिन रात पसीना बहाता, मगर जमीन से कुछ खास हासिल न होता। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने हामिद को थका हुआ देखकर कहा, बेटा, तुम इस बंजर मट्टी में वक्त क्यों जाया कर रहे हो?
मैंने सुना है कि उस पहाड़ के पीछे एक कदीम वादी है जहां जमीन में कीमती हीरे छुपे हुए हैं। अगर तुम वहां जाओ तो तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी। हामिद के दिल में लालच और उम्मीद ने जगह बना ली। उसने अपना वो छोटा सा खेत एक सस्ते दामों बेच दिया और हीरों की तलाश में निकल पड़ा। उसने कई साल पहाड़ों की खाक छानी, जंगलों में भटका और बेपनाह सख्तियां झीलें, लेकिन उसे कहीं कोई हीरा ना मिला। आखिरकार वो बूढ़ा और बीमार होकर खाली हाथ अपने गांव वापस लौट आया। जब वो अपने पुराने खेत के पास से गुजरा तो वो दंग रह गया। वहां अब बंजर जमीन नहीं थी, बल्कि लुक लहलहाते हुए अनाज के खेत और खूबसूरत फलों के बागात थे। इस खेत का नया मालिक वहां खड़ा काम कर रहा था। हामिद ने हैरत से पूछा, भाई ये मोजज़ा कैसे हुआ? मैंने तो यहाँ सालों हिल चलाया मगर कुछ ना आगा। नए मालिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हामिद भाई, मोजज़ा मिट्टी में नहीं तरीके में था। जब मैंने ये जमीन ली तो मैंने सिर्फ ऊपर की मिट्टी नहीं देखी बल्कि गहराई तक खुदाई की। मुझे नीचे से एक मीठे पानी का चश्मा मिला। मैंने इसी पानी से खेत को सैराब किया और आज ये जमीन सोना अगल रही है। हामिद वहीं बैठ गया और उसे एहसास हुआ कि वो जिस हीरे की तलाश में दर दर भटक रहा था वो दरअसल उसके अपने ही कदमों के नीचे छुपा हुआ था। बस उसे थोड़ी और गहराई और सब्र से काम लेने की जरूरत थी। नतीजा, हम अक्सर कामयाबी को दूर दराज के ख्वाबों में ढूंढते हैं, जबकि कामयाबी हमारे अपने काम को बेहतर तरीके से करने और मुसलसल मेहनत करने में छुपी होती है। अल्लाह ने हर इंसान के कदमों तले कोई न कोई खजाना रखा है, बस उसे पहचानने की देर है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुराने मोहल्ले के कोने में बाबा करीम की एक छोटी सी मुरम्मत की दुकान थी। बाबा करीम पुरानी घड़ियां ठीक करते थे। उनका मानना था कि वक्त इंसान को नहीं बदलता, बल्कि इंसान वक्त को बदलने की ताकत रखता है। एक सर्द शाम एक नौजवान लड़का जिसका नाम अरसलान था दुकान में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मायूसी थी और हाथ में एक पुरानी टूटे हुए शीशे वाली घड़ी। बाबा, क्या ये ठीक हो सकती है? अरसलान ने बुझे हुए लहजे में पूछा। ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी है, लेकिन अब ये चलना बंद हो गई है। शायद अब इसका वक्त खत्म हो गया है। बाबा करीम ने अपनी ऐनक दुरुस्त की और घड़ी का मुआयना करने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, घड़ी रुकने का मतलब ये नहीं होता कि वक्त रुक गया है, बस थोड़ी सी तवज्जो और मरम्मत की जरूरत होती है। अरसलान ने ठंडी आह भरी, मेरी जिंदगी भी इस घड़ी की तरह रुक गई है बाबा। इम्तिहान में नाकामी, दोस्तों की बेवफाई और अब घर के हालात। मुझे लगता है मेरी कोशिशों का कोई फायदा नहीं। बाबा करीम खामोशी से अपना काम करते रहे। उन्होंने घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे अलग किए, उन्हें साफ किया और दोबारा जोड़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने घड़ी अरसलान के सामने मेज पर रख दी। अब वो बिल्कुल ठीक चल रही थी और उसकी टक टक खामोश दुकान में गूंज रही थी। बाबा करीम ने अरसलान की आंखों में झांकते हुए कहा, देखो बेटा, इस घड़ी के अंदर सिर्फ एक छोटा सा कचरा फंस गया था जिसने इतनी बड़ी मशीनरी को रोक दिया था। इंसान का दिल भी ऐसा ही है। जब हम मायूसी और मनफी सोचों का कचरा अपने अंदर जमा कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी की रफ्तार रुक जाती है। उन्होंने मजीद कहा, कोशिश करना मत छोड़ो। अगर आज तुम्हारी जिंदगी की घड़ी रुक गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी सोच की मरम्मत करने और एक नए आगाज की जरूरत है। अरसलान को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर की बुझी हुई उम्मीद दोबारा रोशन हो गई हो। उसने घड़ी ली, बाबा करीम का शुक्रिया अदा किया और एक नए अज़्म के साथ दुकान से बाहर निकल गया। उसे समझ आ गया था कि वक्त की सुइयों को दोबारा हरकत में लाना खुद उसके अपने हाथ में है। सबक, जिंदगी में मुश्किलात सिर्फ एक वक्फा होती हैं, इख्तिताम नहीं। अगर हम हिम्मत न हारें तो रुका हुआ वक्त भी दोबारा बेहतर अंदाज में शुरू हो सकता है। कीमती पत्थर। एक दौरफ्तादा गांव में हामिद नामी एक किसान रहता था। हामिद बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था जहां वो दिन रात पसीना बहाता, मगर जमीन से कुछ खास हासिल न होता। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने हामिद को थका हुआ देखकर कहा, बेटा, तुम इस बंजर मट्टी में वक्त क्यों जाया कर रहे हो? मैंने सुना है कि उस पहाड़ के पीछे एक कदीम वादी है जहां जमीन में कीमती हीरे छुपे हुए हैं। अगर तुम वहां जाओ तो तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी। हामिद के दिल में लालच और उम्मीद ने जगह बना ली। उसने अपना वो छोटा सा खेत एक सस्ते दामों बेच दिया और हीरों की तलाश में निकल पड़ा। उसने कई साल पहाड़ों की खाक छानी, जंगलों में भटका और बेपनाह सख्तियां झीलें, लेकिन उसे कहीं कोई हीरा ना मिला। आखिरकार वो बूढ़ा और बीमार होकर खाली हाथ अपने गांव वापस लौट आया। जब वो अपने पुराने खेत के पास से गुजरा तो वो दंग रह गया। वहां अब बंजर जमीन नहीं थी, बल्कि लुक लहलहाते हुए अनाज के खेत और खूबसूरत फलों के बागात थे।
इस खेत का नया मालिक वहां खड़ा काम कर रहा था। हामिद ने हैरत से पूछा, भाई ये मोजज़ा कैसे हुआ? मैंने तो यहाँ सालों हिल चलाया मगर कुछ ना आगा। नए मालिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हामिद भाई मोजज़ा मिट्टी में नहीं तरीके में था। जब मैंने ये ज़मीन ली तो मैंने सिर्फ ऊपर की मिट्टी नहीं देखी बल्कि गहराई तक खुदाई की। मुझे नीचे से एक मीठे पानी का चश्मा मिला। मैंने इसी पानी से खेत को सैराब किया और आज ये ज़मीन सोना अगल रही है। हामिद वहीं बैठ गया और उसे एहसास हुआ कि वो जिस हीरे की तलाश में दर दर भटक रहा था वो दरअसल उसके अपने ही कदमों के नीचे छुपा हुआ था। बस उसे थोड़ी और गहराई और सब्र से काम लेने की ज़रूरत थी। नतीजा, हम अक्सर कामयाबी को दूर दराज के ख्वाबों में ढूंढते हैं, जबकि कामयाबी हमारे अपने काम को बेहतर तरीके से करने और मुसलसल मेहनत करने में छुपी होती है। अल्लाह ने हर इंसान के कदमों तले कोई न कोई खजाना रखा है, बस उसे पहचानने की देर है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुराने मोहल्ले के कोने में बाबा करीम की एक छोटी सी मुरम्मत की दुकान थी। बाबा करीम पुरानी घड़ियां ठीक करते थे। उनका मानना था कि वक्त इंसान को नहीं बदलता बल्कि इंसान वक्त को बदलने की ताकत रखता है। एक सर्द शाम एक नौजवान लड़का जिसका नाम अरसलान था दुकान में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मायूसी थी और हाथ में एक पुरानी टूटे हुए शीशे वाली घड़ी। बाबा क्या ये ठीक हो सकती है? अरसलान ने बुझे हुए लहजे में पूछा। ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी है, लेकिन अब ये चलना बंद हो गई है। शायद अब इसका वक्त खत्म हो गया है। बाबा करीम ने अपनी ऐनक दुरुस्त की और घड़ी का मुआयना करने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा घड़ी रुकने का मतलब ये नहीं होता कि वक्त रुक गया है, बस थोड़ी सी तवज्जो और मरम्मत की ज़रूरत होती है। अरसलान ने ठंडी आह भरी, मेरी जिंदगी भी इस घड़ी की तरह रुक गई है बाबा। इम्तिहान में नाकामी, दोस्तों की बेवफाई और अब घर के हालात। मुझे लगता है मेरी कोशिशों का कोई फायदा नहीं। बाबा करीम खामोशी से अपना काम करते रहे। उन्होंने घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे अलग किए, उन्हें साफ किया और दोबारा जोड़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने घड़ी अरसलान के सामने मेज पर रख दी। अब वो बिल्कुल ठीक चल रही थी और उसकी टक टक खामोश दुकान में गूंज रही थी। बाबा करीम ने अरसलान की आंखों में झांकते हुए कहा, देखो बेटा, इस घड़ी के अंदर सिर्फ एक छोटा सा कचरा फंस गया था जिसने इतनी बड़ी मशीनरी को रोक दिया था। इंसान का दिल भी ऐसा ही है। जब हम मायूसी और मनफी सोचों का कचरा अपने अंदर जमा कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी की रफ्तार रुक जाती है। उन्होंने मजीद कहा, कोशिश करना मत छोड़ो। अगर आज तुम्हारी जिंदगी की घड़ी रुक गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी सोच की मरम्मत करने और एक नए आगाज की जरूरत है। अरसलान को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर की बुझी हुई उम्मीद दोबारा रोशन हो गई हो। उसने घड़ी ली, बाबा करीम का शुक्रिया अदा किया और एक नए अज़्म के साथ दुकान से बाहर निकल गया। उसे समझ आ गया था कि वक्त की सोइयों को दोबारा हरकत में लाना खुद उसके अपने हाथ में है। सबक, जिंदगी में मुश्किलात सिर्फ एक वक्फा होती हैं, इख्तिताम नहीं। अगर हम हिम्मत न हारें तो रुका हुआ वक्त भी दोबारा बेहतर अंदाज में शुरू हो सकता है। कीमती पत्थर। एक दौरफ्तादा गांव में हामिद नामी एक किसान रहता था। हामिद बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था जहां वो दिन रात पसीना बहाता, मगर जमीन से कुछ खास हासिल न होता। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने हामिद को थका हुआ देखकर कहा, बेटा तुम इस बंजर मिट्टी में वक्त क्यों जाया कर रहे हो? मैंने सुना है कि उस पहाड़ के पीछे एक कदीम वादी है जहां जमीन में कीमती हीरे छुपे हुए हैं। अगर तुम वहां जाओ तो तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी। हामिद के दिल में लालच और उम्मीद ने जगह बना ली। उसने अपना वो छोटा सा खेत एक सस्ते दामों बेच दिया और हीरों की तलाश में निकल पड़ा। उसने कई साल पहाड़ों की खाक छानी, जंगलों में भटका और बेपनाह सख्तियां झीलें, लेकिन उसे कहीं कोई हीरा ना मिला। आखिरकार वो बूढ़ा और बीमार होकर खाली हाथ अपने गांव वापस लौट आया। जब वो अपने पुराने खेत के पास से गुजरा तो वो दंग रह गया। वहां अब बंजर जमीन नहीं थी, बल्कि लुक लहलहाते हुए अनाज के खेत और खूबसूरत फलों के बागात थे। इस खेत का नया मालिक वहां खड़ा काम कर रहा था। हामिद ने हैरत से पूछा, भाई ये मोजज़ा कैसे हुआ? मैंने तो यहाँ सालों हिल चलाया मगर कुछ ना आगा। नए मालिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हामिद भाई मोजज़ा मिट्टी में नहीं तरीके में था। जब मैंने ये ज़मीन ली तो मैंने सिर्फ ऊपर की मिट्टी नहीं देखी बल्कि गहराई तक खुदाई की। मुझे नीचे से एक मीठे पानी का चश्मा मिला। मैंने इसी पानी से खेत को सैराब किया और आज ये ज़मीन सोना अगल रही है। हामिद वहीं बैठ गया और उसे एहसास हुआ कि वो जिस हीरे की तलाश में दर दर भटक रहा था
वो दरअसल उसके अपने ही कदमों के नीचे छुपा हुआ था, बस उसे थोड़ी और गहराई और सब्र से काम लेने की जरूरत थी। नतीजा, हम अक्सर कामयाबी को दूर दराज के ख्वाबों में ढूंढते हैं, जबकि कामयाबी हमारे अपने काम को बेहतर तरीके से करने और मुसलसल मेहनत करने में छुपी होती है। अल्लाह ने हर इंसान के कदमों तले कोई न कोई खजाना रखा है, बस उसे पहचानने की देर है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुराने मोहल्ले के कोने में बाबा करीम की एक छोटी सी मुरम्मत की दुकान थी। बाबा करीम पुरानी घड़ियां ठीक करते थे। उनका मानना था कि वक्त इंसान को नहीं बदलता, बल्कि इंसान वक्त को बदलने की ताकत रखता है। एक सर्द शाम एक नौजवान लड़का जिसका नाम अरसलान था, दुकान में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मायूसी थी और हाथ में एक पुरानी टूटे हुए शीशे वाली घड़ी। बाबा, क्या ये ठीक हो सकती है? अरसलान ने बुझे हुए लहजे में पूछा। ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी है, लेकिन अब ये चलना बंद हो गई है। शायद अब इसका वक्त खत्म हो गया है। बाबा करीम ने अपनी ऐनक दुरुस्त की और घड़ी का मुआयना करने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, घड़ी रुकने का मतलब ये नहीं होता कि वक्त रुक गया है, बस थोड़ी सी तवज्जो और मरम्मत की जरूरत होती है। अरसलान ने ठंडी आह भरी, मेरी जिंदगी भी इस घड़ी की तरह रुक गई है बाबा। इम्तिहान में नाकामी, दोस्तों की बेवफाई और अब घर के हालात। मुझे लगता है मेरी कोशिशों का कोई फायदा नहीं। बाबा करीम खामोशी से अपना काम करते रहे। उन्होंने घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे अलग किए, उन्हें साफ किया और दोबारा जोड़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने घड़ी अरसलान के सामने मेज पर रख दी। अब वो बिल्कुल ठीक चल रही थी और उसकी टक टक खामोश दुकान में गूंज रही थी। बाबा करीम ने अरसलान की आंखों में झांकते हुए कहा, देखो बेटा, इस घड़ी के अंदर सिर्फ एक छोटा सा कचरा फंस गया था, जिसने इतनी बड़ी मशीनरी को रोक दिया था। इंसान का दिल भी ऐसा ही है। जब हम मायूसी और मनफी सोचों का कचरा अपने अंदर जमा कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी की रफ्तार रुक जाती है। उन्होंने मजीद कहा, कोशिश करना मत छोड़ो। अगर आज तुम्हारी जिंदगी की घड़ी रुक गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी सोच की मरम्मत करने और एक नए आगाज की जरूरत है। अरसलान को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर की बुझी हुई उम्मीद दोबारा रोशन हो गई हो। उसने घड़ी ली, बाबा करीम का शुक्रिया अदा किया और एक नए अज़्म के साथ दुकान से बाहर निकल गया। उसे समझ आ गया था कि वक्त की सोइयों को दोबारा हरकत में लाना खुद उसके अपने हाथ में है। सबक, जिंदगी में मुश्किलात सिर्फ एक वक्फा होती हैं, इख्तिताम नहीं। अगर हम हिम्मत न हारें तो रुका हुआ वक्त भी दोबारा बेहतर अंदाज में शुरू हो सकता है। कीमती पत्थर। एक दौरफ्तादा गांव में हामिद नामी एक किसान रहता था। हामिद बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था, जहां वो दिन रात पसीना बहाता, मगर जमीन से कुछ खास हासिल न होता। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने हामिद को थका हुआ देखकर कहा, बेटा, तुम इस बंजर मट्टी में वक्त क्यों जाया कर रहे हो? मैंने सुना है कि उस पहाड़ के पीछे एक कदीम वादी है जहां जमीन में कीमती हीरे छुपे हुए हैं। अगर तुम वहां जाओ तो तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी। हामिद के दिल में लालच और उम्मीद ने जगह बना ली। उसने अपना वो छोटा सा खेत एक सस्ते दामों बेच दिया और हीरों की तलाश में निकल पड़ा। उसने कई साल पहाड़ों की खाक छानी, जंगलों में भटका और बेपनाह सख्तियां झीलें, लेकिन उसे कहीं कोई हीरा ना मिला। आखिरकार वो बूढ़ा और बीमार होकर खाली हाथ अपने गांव वापस लौट आया। जब वो अपने पुराने खेत के पास से गुजरा तो वो दंग रह गया। वहां अब बंजर जमीन नहीं थी, बल्कि लुक लहलहाते हुए अनाज के खेत और खूबसूरत फलों के बागात थे। इस खेत का नया मालिक वहां खड़ा काम कर रहा था। हामिद ने हैरत से पूछा, भाई, ये मोजज़ा कैसे हुआ? मैंने तो यहां सालों हिल चलाया मगर कुछ ना आगा। नए मालिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हामिद भाई, मोजज़ा मिट्टी में नहीं, तरीके में था। जब मैंने ये जमीन ली तो मैंने सिर्फ ऊपर की मिट्टी नहीं देखी, बल्कि गहराई तक खुदाई की। मुझे नीचे से एक मीठे पानी का चश्मा मिला। मैंने इसी पानी से खेत को सैराब किया और आज ये जमीन सोना अगल रही है। हामिद वहीं बैठ गया और उसे एहसास हुआ कि वो जिस हीरे की तलाश में दर दर भटक रहा था, वो दरअसल उसके अपने ही कदमों के नीचे छुपा हुआ था। बस उसे थोड़ी और गहराई और सब्र से काम लेने की जरूरत थी। नतीजा, हम अक्सर कामयाबी को दूर दराज के ख्वाबों में ढूंढते हैं, जबकि कामयाबी हमारे अपने काम को बेहतर तरीके से करने और मुसलसल मेहनत करने में छुपी होती है। अल्लाह ने हर इंसान के कदमों तले कोई न कोई खजाना रखा है, बस उसे पहचानने की देर है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुराने मोहल्ले के कोने में बाबा करीम की एक छोटी सी मुरम्मत की दुकान थी।
बाबा करीम पुरानी घड़ियां ठीक करते थे। उनका मानना था कि वक्त इंसान को नहीं बदलता, बल्कि इंसान वक्त को बदलने की ताकत रखता है। एक सर्द शाम एक नौजवान लड़का जिसका नाम अरसलान था दुकान में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मायूसी थी और हाथ में एक पुरानी टूटे हुए शीशे वाली घड़ी। बाबा, क्या ये ठीक हो सकती है? अरसलान ने बुझे हुए लहजे में पूछा। ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी है, लेकिन अब ये चलना बंद हो गई है। शायद अब इसका वक्त खत्म हो गया है। बाबा करीम ने अपनी ऐनक दुरुस्त की और घड़ी का मुआयना करने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, घड़ी रुकने का मतलब ये नहीं होता कि वक्त रुक गया है, बस थोड़ी सी तवज्जो और मरम्मत की जरूरत होती है। अरसलान ने ठंडी आह भरी, मेरी जिंदगी भी इस घड़ी की तरह रुक गई है बाबा। इम्तिहान में नाकामी, दोस्तों की बेवफाई और अब घर के हालात। मुझे लगता है मेरी कोशिशों का कोई फायदा नहीं। बाबा करीम खामोशी से अपना काम करते रहे। उन्होंने घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे अलग किए, उन्हें साफ किया और दोबारा जोड़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने घड़ी अरसलान के सामने मेज पर रख दी। अब वो बिल्कुल ठीक चल रही थी और उसकी टक टक खामोश दुकान में गूंज रही थी। बाबा करीम ने अरसलान की आंखों में झांकते हुए कहा, देखो बेटा, इस घड़ी के अंदर सिर्फ एक छोटा सा कचरा फंस गया था जिसने इतनी बड़ी मशीनरी को रोक दिया था। इंसान का दिल भी ऐसा ही है। जब हम मायूसी और मनफी सोचों का कचरा अपने अंदर जमा कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी की रफ्तार रुक जाती है। उन्होंने मजीद कहा, कोशिश करना मत छोड़ो। अगर आज तुम्हारी जिंदगी की घड़ी रुक गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी सोच की मरम्मत करने और एक नए आगाज की जरूरत है। अरसलान को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर की बुझी हुई उम्मीद दोबारा रोशन हो गई हो। उसने घड़ी ली, बाबा करीम का शुक्रिया अदा किया और एक नए अज़्म के साथ दुकान से बाहर निकल गया। उसे समझ आ गया था कि वक्त की सुइयों को दोबारा हरकत में लाना खुद उसके अपने हाथ में है। सबक, जिंदगी में मुश्किलात सिर्फ एक वक्फा होती हैं, इख्तिताम नहीं। अगर हम हिम्मत न हारें तो रुका हुआ वक्त भी दोबारा बेहतर अंदाज में शुरू हो सकता है। कीमती पत्थर। एक दौरफ्तादा गांव में हामिद नामी एक किसान रहता था। हामिद बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था जहां वो दिन रात पसीना बहाता, मगर जमीन से कुछ खास हासिल न होता। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने हामिद को थका हुआ देखकर कहा, बेटा, तुम इस बंजर मट्टी में वक्त क्यों जाया कर रहे हो? मैंने सुना है कि उस पहाड़ के पीछे एक कदीम वादी है जहां जमीन में कीमती हीरे छुपे हुए हैं। अगर तुम वहां जाओ तो तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी। हामिद के दिल में लालच और उम्मीद ने जगह बना ली। उसने अपना वो छोटा सा खेत एक सस्ते दामों बेच दिया और हीरों की तलाश में निकल पड़ा। उसने कई साल पहाड़ों की खाक छानी, जंगलों में भटका और बेपनाह सख्तियां झीलें, लेकिन उसे कहीं कोई हीरा ना मिला। आखिरकार वो बूढ़ा और बीमार होकर खाली हाथ अपने गांव वापस लौट आया। जब वो अपने पुराने खेत के पास से गुजरा तो वो दंग रह गया। वहां अब बंजर जमीन नहीं थी, बल्कि लुक लहलहाते हुए अनाज के खेत और खूबसूरत फलों के बागात थे। इस खेत का नया मालिक वहां खड़ा काम कर रहा था। हामिद ने हैरत से पूछा, भाई, ये मोजज़ा कैसे हुआ? मैंने तो यहाँ सालों हिल चलाया मगर कुछ ना आगा। नए मालिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हामिद भाई, मोजज़ा मिट्टी में नहीं, तरीके में था। जब मैंने ये जमीन ली तो मैंने सिर्फ ऊपर की मिट्टी नहीं देखी, बल्कि गहराई तक खुदाई की। मुझे नीचे से एक मीठे पानी का चश्मा मिला। मैंने इसी पानी से खेत को सैराब किया और आज ये जमीन सोना अगल रही है। हामिद वहीं बैठ गया और उसे एहसास हुआ कि वो जिस हीरे की तलाश में दर दर भटक रहा था वो दरअसल उसके अपने ही कदमों के नीचे छुपा हुआ था। बस उसे थोड़ी और गहराई और सब्र से काम लेने की जरूरत थी। नतीजा, हम अक्सर कामयाबी को दूर दराज के ख्वाबों में ढूंढते हैं, जबकि कामयाबी हमारे अपने काम को बेहतर तरीके से करने और मुसलसल मेहनत करने में छुपी होती है। अल्लाह ने हर इंसान के कदमों तले कोई न कोई खजाना रखा है, बस उसे पहचानने की देर है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुराने मोहल्ले के कोने में बाबा करीम की एक छोटी सी मरम्मत की दुकान थी। बाबा करीम पुरानी घड़ियां ठीक करते थे। उनका मानना था कि वक्त इंसान को नहीं बदलता, बल्कि इंसान वक्त को बदलने की ताकत रखता है। एक सर्द शाम एक नौजवान लड़का जिसका नाम अरसलान था दुकान में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मायूसी थी और हाथ में एक पुरानी टूटे हुए शीशे वाली घड़ी। बाबा, क्या ये ठीक हो सकती है? अरसलान ने बुझे हुए लहजे में पूछा। ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी है, लेकिन अब ये चलना बंद हो गई है। शायद अब इसका वक्त खत्म हो गया है। बाबा करीम ने अपनी शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुराने मोहल्ले के कोने में बाबा करीम की एक छोटी सी मरम्मत की दुकान थी। बाबा करीम पुरानी घड़ियां ठीक करते थे। उनका मानना था कि वक्त इंसान को नहीं बदलता, बल्कि इंसान वक्त को बदलने की ताकत रखता है।
एक सर्द शाम एक नौजवान लड़का जिसका नाम अरसलान था दुकान में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मायूसी थी और हाथ में एक पुरानी टूटे हुए शीशे वाली